Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy videos. So today I came with the topic wholesale trade. Wholesale trade, it is an example in indirect selling method. In earlier video I explained what are the direct selling of the product from the producer to consumer. So in this class we have planned the wholesale trader, means it is an indirector. Indirect is nothing but manufacturer manufacture the goods and sales to the wholesaler, that is the indirect seller, wholesaler or retailer. So in this class we are discussing wholesaler and again sale to the retailer, and the retailer will sales to the customer. This process is called as an indirect selling of the producer produced goods. Okay, so wholesale or first word trade means buying and selling, buying from the producer and selling to the retailer, in a large quantity buying and a small quantity selling to the retailer. So that is called as a trade. And selling to the consumer also rarely will be used, whereas majorly the retailer is a main aim of the wholesaler to sell there when purchased a large volume from the producer to the retailer. So the wholesale is nothing but purchasing in a large quantity and selling into small quantity to the retailer. So wholesaler is a link between the manufacturer as well as the retailer. So wholesaler is become the major link for the business from manufacturer and retailer, because from manufacturer he purchases the goods in a large volume and he will sales to the retailer to the small volume, hence he is become as a link for the both side. So this wholesale trade is very much important in the channels of distribution, and majorly it is asked for the common question in the examination. Let me discuss what are the types of wholesaler are there. Okay, what are the different types of wholesaler are there. So one we call as a manufacturer wholesaler. So see the word manufacturer wholesaler means they will be the manufacturers and also will have the own wholesaler, and also this wholesaler purchases the goods from the different manufacturer, and that type of wholesaler is called as a manufacturing wholesaler. I am repeating word manufacturer its own. The wholesaler is a one part, another part is that he is a manufacture the goods. So those goods will be selling, along with that the other company manufacturer also he purchases. Okay, say example manufacturer 1, manufacturer 2, manufacturer 3, and finally all this the collected wholesaler will sell to the retailer in a small quantity, and that type of wholesaler we call as a manufacturer wholesaler. यहाँ पे क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चर भी वही रहता है, होलसेलर भी वही रह जाता है. मैन्युफैक्चर करने के बाद होलसेल में लेके होलसेल से रिटेल को बेचता है, एक स्टेप. इसके अलावा जो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है वो लेता है, दूसरे अलावा दूसरा कंपनी जो मैन्युफैक्चर करता है वो भी लेके जो सेल रिटेल को करता है ना, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर होलसेलर. Retail wholesaler, so purchases goods from the manufacturer and keeping on the wholesaler and selling to the directly to the retailer or directly to the consumer. So that is why it is called as a retailer. यहाँ पे क्या हो जाता है, wholesaler जो रहता है ना, गुड्स जो परचेज करता है ना मैन्युफैक्चर से, वो एक तरह से रिटेल को भी बेचता है, दूसरी तरफ से कस्टमर को भी बेचता है डायरेक्टली. सो उसको बोलते हैं रिटेलर होलसेलर. एंड थर्ड वन इज प्योर होलसेलर. सी द वर्ड प्योर होलसेलर. यहाँ पे क्या है, होलसेलर प्योरली परचेजिंग विथ द प्रोड्यूसर से और कंप्लीटली उन्हें सेल करता है रिटेलर को एक इंच, यहाँ पे कस्टमर्स को नहीं रहता है. सो इसलिए बोलते हैं इसको प्योर होलसेलर. नेक्स्ट कम्स द फंक्शंस ऑफ होलसेलर, मतलब क्या क्या फंक्शन रहता है होलसेलर का बोले तो. सो फर्स्ट वन इज असेंबली ऑफ गुड्स. असेंबली मीन्स अभी समझ लीजिए ये होलसेलर है, ये प्रोड्यूसर 1, प्रोड्यूसर 2, प्रोड्यूसर 3 है. ये जो दूसरे प्रोड्यूसर से जो माल कलेक्ट करता है ना, उसको बोलते हैं असेंबली ऑफ गुड्स.
Distribution. So distribution is another important function of the wholesaler. Once he purchase from the different producer, he will distribute the different retailer and also some of the wholesaler also. Okay, different retailer and also some of the wholesaler also. So that is called as a distribution. Storage is important for the wholesaler. क्यों बोले तो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है ना प्रोडक्ट, वो स्टोर करने के लिए होलसेलर को बहुत ज़रूरी है. सो इसलिए स्टोरेज भी करता है टू मेंटेन द लैग टाइम आर द नॉन सीजनल मेडिसिन जो भी रहता है ना, उसको स्टोर करने के लिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहता होलसेलर के लिए. फाइनेंसिंग, यहाँ पे क्या हो जाता है, होलसेलर जो परचेज करता है ना प्रोड्यूसर से, वहाँ पे एडवांस पेमेंट करके उन्हें परचेज करता है. यहाँ पे रिटेलर उनको क्रेडिट देता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है. 1% क्रेडिट, 2% क्रेडिट, 1 मंथ क्रेडिट, 2 मंथ क्रेडिट, ऐसा जो करता है ना वो भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है. ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे होलसेलर क्या करता है, जैसे प्रोड्यूसर से माल आता है ना, इंडिविजुअल रिटेलर को खुद का व्हीकल रखे, ड्राइवर रखे, वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए होलसेलर इज आल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन. रिस्क बियरिंग बहुत ही रहता है, होलसेलर को बहुत ही रहता है. क्यों बोला तो एडवांस पेमेंट रहता है, लार्ज क्वांटिटी रहता है, उनके पास एक्सपायरी डेट देखना, प्राइस के बारे में ज़्यादा कम होते रहता, वो भी देख लेना, वो बहुत ज़रूरी रिस्क रहता फॉर द होलसेलर. प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन टू द मैन्युफैक्चरर को और द रिटेलर. ये जो लिंक रहने से क्या हो जाता है, जो भी फीडबैक आता है रिटेलर का, ये जो रिटेलर का फीडबैक को मैन्युफैक्चरर को भी देता है, मैन्युफैक्चरर जो फीडबैक देता है रिटेलर को भी देता. इस तरह से नंबर ऑफ द फंक्शंस ऑफ द होलसेलर यहाँ पे रहता है. नेक्स्ट कम्स व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ होलसेलर. तीन तरीका का एडवांटेजेस है. एक तो एडवांटेजेस होलसेलर से प्रोड्यूसर को क्या हो जाता है, एडवांटेजेस होलसेलर से रिटेलर को क्या हो जाता है, एडवांटेजेस टू द कस्टमर और कंज्यूमर और सोसाइटी में क्या फ़ायदा होता है, वो एडवांटेजेस समझ लीजिए. होलसेलर से प्रोड्यूसर को क्या इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है बोले तो, लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर मिल जाता है वो प्रोड्यूसर को, फीडबैक भी मिल जाता है मार्केट का क्या ज़रूरत है बोल के. एडवर्टाइजमेंट में होलसेलर खुद करता है, इसलिए प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ज़्यादा सेल्स होता. ये जो होलसेलर रहता है फाइनेंस हेल्प करता है किसको बोले तो, रिटेलर को. क्यों बोले तो एडवांस पेमेंट करके प्रोड्यूसर से माल लाके रिटेलर को क्रेडिट में देता है ना, वो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस फॉर द प्रोड्यूसर. यहाँ पे प्रोड्यूसर को टेंशन ही नहीं, क्वांटिटी बनाने के बाद होलसेलर को बेच देता है और फीडबैक जो भी आता है ऑटोमेटिकली आ जाता. एडवर्टाइजमेंट भी होलसेलर करता और द फाइनेंशियल भी होलसेलर भी रिटेलर को करता है. उससे क्या हो जाता है, प्रोड्यूसर को बहुत फ़ायदा रहता है. नेक्स्ट कम्स टू रिटेलर. होलसेलर से रिटेलर्स को क्या मिलता है एडवांटेजेस बोले तो, ये जो होलसेलर रहता है ना डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से माल खरीद लेता है, वो एक इम्पॉर्टेंट है. जो भी रिटेलर पूछता है वो कंपनी का माल रेडी स्टॉक रखता है, सेल करता है और स्मॉल क्वांटिटी भी देता है और क्रेडिट बेस्ड भी करता है. रिस्क जो भी रहता है होलसेलर खुद लेता है और प्राइस फ्लक्चुएशन रहे तो एक्सचेंज भी करता है. ट्रेड डिस्काउंट रहता है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से ये सब सप्लाई करने से क्या हो जाता है, रिटेलर को बहुत ही फायदा है फ्रॉम द होलसेलर. एंड द नेक्स्ट थर्ड एडवांटेजेस इज होलसेलर विथ द कंज्यूमर सोसाइटी. इससे लोगों को क्या फ़ायदा है होलसेलर से, मतलब सेलेक्ट द बेस्ट वेरियस प्रोडक्ट. मतलब क्या हो जाता है, होलसेलर हर तरह का स्टॉक रख दिए तो रिटेलर को अच्छा हो जाता है. रिटेलर होलसेलर से लाता, जैसे लाने के बाद कस्टमर को भी चॉइस होता है. समझ लीजिए इनो पाउडर है, इनो फ्लेवर्स जो भी आता है, लेमन आता है, ऑरेंज आता है, कोला आता है, ये तीनों चीज़ अगर दुकान में रहे तो जो भी लेने वालों को रहता है उनको चॉइस रहता है, अपना पसंद से लेते. ये जो सब सही होना बोले तो होलसेलर सही रहना, होलसेलर मेंटेन स्टॉक अच्छा रहे तो रिटेलर परचेज करता है, उसको रीसेल करता है कंज्यूमर को. सो समझ लीजिए टेस्ट, फैशन, डिमांड, ऑल दिस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, प्राइस कंट्रोल, स्टोर्स सफिशिएंट क्वांटिटी, ये हो जाता है. प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं रहता, जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट है इमीडिएटली अवेलेबल टू द कंज्यूमर, और प्राइस में ज़्यादा कम नहीं रहता. अगर समझ लीजिए स्टॉक नहीं है बोल के दूसरी जगह पे लाना, वो सब भी चीज़ करके होलसेलर क्या करता है, मैनेज करता है स्टॉक्स को. ओके जिस तरह से मेजर इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस टुवर्ड्स द होलसेलर विथ रेस्पेक्ट टू
producer, wholesaler respect to retailer, wholesale respect to society or consumers. So some are the disadvantages is that होलसेलर क्या करता है, स्टॉक रहते भी स्टॉक नहीं है बोल के बोल देता है, वो टाइम पे क्या हो जाता है, उसका जो परचेसिंग सेलिंग प्राइस रहता है वो थोड़ा ज़्यादा कम करता, वो एक डिसएडवांटेजेस रहता। और क्या है, स्कैरिसिटी, मतलब स्टॉक नहीं, आउट ऑफ स्टॉक बना के क्या हो जाता है, लोगों को थोड़ा तकलीफ होता है। जैसे पैसा ज़्यादा दिए तो होलसेलर वाला रिटेलर को देता है, रिटेलर से हमको आ जाता है। समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत ही सरल से होलसेल ट्रेड बोले तो एग्जाम्पल कम्स अंडर द इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड। वो होलसेलर बोले तो बाइंग एंड ट्रेड मतलब क्या हो जाता है, बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, बाइंग में ज़्यादा लेते क्वांटिटी, सेलिंग में कम में बेच देते। ओके, सो दिस इज एन द क्लास व्हाट वी आर एनलाइटेड वेरी क्लियरली what are the types, what are the functions of wholesaler and what are the advantages and disadvantages of the wholesaler। समझता हूँ ये क्लास से बहुत सरल से आपको होलसेल ट्रेड बोले तो क्या है बोल के मालूम हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।